تو جناب خبر وہی انداز میں ہمیں جلدی سے آج کی ٹاپ سٹوریز پر مختصر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ رات گئے کئی شہروں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بھی بھرپور حملے کرتے ہوئے امریکی اڈوں پر میزائل برسائے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے بہت قریب ہے۔ ڈیل ایک ہفتے سے چند ماہ میں ہی ممکن ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا پروگرام میں آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے، اور آگے جا کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گلگت بلتستان کے امور سے متعلق مل بیٹھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ہاں جی جناب، اور ایک اور بڑی خبر، وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا، جبکہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج دن 11:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کی سیاست میں بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ ناراض ارکان کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ فضل الہی نے 35 سے 40 ایم پی ایس کی حمایت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، دیکھیں گے پروگرام میں آگے چل کر کے ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا تھا۔ لیکن سب سے پہلے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے امریکہ نے رات گئے ایران پر پھر یلغار کر دی ہے۔ آبنہ ہرمز پر اپاچی ہیلی مارک گرانے کے جواب میں امریکی فوج نے حملے کیے اور ایران کے ساحلی شہر جس میں قیشم، سیرت، میناب اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آپ کو ہم اس حوالے سے بتا بھی رہے ہیں کہ دوسری اور تیسری لہر میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ یہ رد عمل بہت سخت ہونا چاہیے، ایسا انہوں نے کہا۔ اور سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کے قریب جو ایرانی دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملوں میں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم، گراؤنڈ کنٹرول سسٹم اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک وہ دعویٰ ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایرانی موقف کیا آتا ہے۔ بالکل، حملوں کا مقصد ایران کو وارننگ دینا ہے۔ یہ ہے وہ موقف۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں 5 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں فوجی اڈے اور ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور سیرک کے علاقے بیمانی میں بھی پانی کے ٹینکوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جس سے صاف پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ یعنی کہ ٹارگٹ کہیں نہ کہیں بالکل عوام تو ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ صاف پانی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہ مل سکے۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق قشم جزیرے کی تجارتی بندرگاہیں حملوں میں محفوظ رہی ہیں۔ تو یہ وہ بندرگاہیں تھیں جو حملوں میں محفوظ رہی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے۔ تو وہی بات جو آپ کر رہی تھی، ان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ہم آپ کو پاسداران انقلاب کی جانب سے بتا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اب جو موقف پاسداران انقلاب کا سامنے آ رہا ہے ہم آپ کو کوئکلی وہ بتا دیتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا بوش شہر میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو اس سے بھی سخت جواب ملے گا۔ بڑا ایک واضح پوائنٹ آف ویو پاسداران انقلاب کی جانب سے دیا گیا ہے اس تمام صورتحال سے متعلق۔ بالکل۔ اور جی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکل جائیں، یہ کہا گیا۔ ایران امریکہ نے اپنی ناکامیوں کے باوجود ہمارے عزم کو آزمایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، جس کے بعد پاسداران انقلاب نے جو جوابی حملے کیے، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور اب یہ بڑا ایرانی فوج کی جانب سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ہماری طاقتور افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے، عباس عراقچی نے یہ کہا ہے۔ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی مداخلت کرنے والوں کے عبرتناک انجام کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا، عباس عراقچی نے پہلے بھی تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کا حوالہ دے کر اس حوالے سے گاہے بگاہے بات کی ہے کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم مزید ریٹیلیٹ کریں گے۔ ان میں یہ جذبہ ہمیشہ سے دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ان کا جذبہ ہے جیت کا اور امن کا، لوگوں کو محفوظ رکھنے کا، وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے۔ اور دیکھیں یہی بات ہے کہ عباس عراقچی کی جانب سے تو ان کا کیا کہنا تھا ہم نے ناظرین کو بتایا۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران پر حملوں کے باوجود
ڈیل متاثر نہیں ہوگی. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہا کس نے. آبویسلی ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں, جے ڈی وینس, امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے, کہ ایک بار پھر حملے ہوئے, ریٹیلیشن ہوا, لیکن جے ڈی وینس امریکی نائب صدر بڑے شیور ہیں کہ اس سے جو ڈیل ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے, سچویشن جوں کی توں ہے. ایران سے معاہدہ اب بھی قریب ہے, اور دوسری طرف نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے بہت قریب ہیں. دے آر ویری کلوز ٹو دا اگریمنٹ. اب معاہدہ ایک ہفتے یا چند ماہ میں ممکن ہے. بولے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک بڑی پیش رفت کا امکان ہے. اچھا, اب یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نا, یہ امریکہ کے لیے بھی ظاہر بڑے اہم ہے. اس سے پہلے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا, ایک اگریمنٹ پر لانا, نیگوسیشن سے اس سارے معاملے کو جو جنگ چھیڑی ہے اسے حل کرنا امریکہ کے لیے بھی اٹ سیلف بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریزولوشن بھی اس سے پہلے قرارداد پیش کی گئی تھی, اور اس میں بھی انہیں اپنی ہی پارٹی سے جو ہے وہ مخالفت سامنے آئی تھی. بیکاز نو بڈی وانٹس وار. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ پیس ہو, ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ خطے میں ان کی اپنی پارٹی سے 4 لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی, مسترد کر دیا تھا. پاکستان کے مستقل مندوب جو عاصم افتخار ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے انہوں نے خطاب بھی کیا, جس میں انہوں نے حالیہ واقعات پہ فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. عاصم افتخار کی جانب سے سفارتکاری کے تعطل سے ایران کے جوہری معاملے پر فاصلے بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور عاصم افتخار اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہے, ان کی جانب سے ایک انتہائی اہم ترین ایڈریس کیا گیا. ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایڈریس میں اپنے خطاب میں کیا کہا. پاکستان ایران کے جو جوہری معاہدہ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. اب مشرق وسطیٰ میں کمزور جنگ بندی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا, ان کی جانب سے مزید کہا گیا سلامتی کونسل سے بیسکلی ایڈریس ہوتا ہے, بڑا اہم ایڈریس ہوتا ہے. وہ آپ کا جو نیریٹو ہے, پاکستان کا جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے پاکستان کا کسی بھی صورتحال پر, یہ وہ نیریٹو واضح کرتا ہے. اب حالیہ واقعات نے فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا, ایسا انہوں نے کہا. سفارتکاری کے تعطل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس حوالے سے ایران کے جو جوہری معاملے پر فاصلے بڑھ گئے ہیں, یعنی کہ جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھ چکا ہے. پاکستان ایران کے جوہری معاملے سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے. صفاتی روابط اور مسلسل مکالمے سے ہی متنازع امور کا جو حل ہے وہ تلاش کیا جائے. عاصم افتخار نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی ہے. پاکستان جنگ کے خاتمے اور فریقین کو مذاکرات پر لانے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستانی مندوب کی جانب سے اپنے اسی خطاب میں, اسی سلامتی کونسل کے ایڈریس میں یہ کہا گیا, فریقین سے اپیل ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور امن کو ایک اور موقع دیں. عاصم افتخار کی جانب سے کہا گیا. اب ظاہر سی بات ہے, دیکھیں یہی تو پاکستان کا رول ہے, یہی تو پاکستان کا ایک ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے. ہم نے کشمیر کے معاملے پہ بھی, ہم نے فلسطین کے معاملے پہ بھی ہمیشہ, اور بالخصوص اس جنگی سیناریو میں بھی جب مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ امن کو ایک موقع دیا جائے. اور امن کی جو میز ہے وہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کس نے سامنے رکھی ہے, جی پاکستان نے سامنے رکھی ہے. بالکل پاکستان نے سامنے رکھی ہے. تو باقی طالبات کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا, اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. ہم نے ملک کو خونخوار بھیڑیوں کے جبڑوں سے بحفاظت نکال لیا ہے. ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے. کہا ہے کہ اگر آپ اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں تو ہم دوسری زبان پر آئیں گے. اس لیے جس گھوڑے پر آپ نے زین کس لی ہے اب اس کی سواری کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے شروع کیے گئے جہاد کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. بالکل. اور ایرانی اسپیکر نے یہ بھی واضح کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ سفارتکاری کی زبان ہماری ترجیح ہے, لیکن ہمیں دوسری زبان میں بھی بات کرنا آتا ہے. اچھا, بیانیے کی جنگ بھی آپ دیکھیں نا ساتھ ساتھ چل رہی ہے, کیونکہ سفارتکاری اور جو آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ نیگوسیشنز کا عمل ہے, جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ہمیشہ راستہ رہتا ہے, وہ کانسٹنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے بڑی اسٹرانگ بات, جیسے کہ کیتھرین آپ نے پورا ایک مفصل انداز میں بتایا نا, کہ جس طرح کا جو ان کا لہجہ تھا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ونڈو میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں ذرا ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ ان کا اس اسٹیٹمنٹ میں
انہوں نے لکھا کیا ہے ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا بتاتے ہیں، جو سائٹ پہ چل رہا ہے تاکہ ناظرین وہ دیکھ بھی سکیں اور ہم نریٹ بھی کر دیں۔ ہم نے ملک کو خون خوار بھیڑیوں کے جبڑوں سے بحفاظت نکال لیا۔ اب آپ اس میں صرف ٹون چیک کریں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکہ کو خبردار کیا ہے اپنی اس میسج کے بعد، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر امن کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہم تو یقینی طور پر سفارتکاری پہ ہی بلیو کرتے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ لیکن جی جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے مشرق وسطیٰ کی اس تازہ ترین جو بھی ڈیولپمنٹ صورتحال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مثبت پیش رفت ہو، کوئی منفی، کچھ ڈیڈ لاک کا شکار ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آئل مارکیٹ پرائزز پہ پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ جو ایک گلوبل آئل پرائزز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو آج بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی کچھ اطلاعات آئی تھیں، جس کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد گراوٹ کے بعد کچھ معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کوئکلی آپ لوگوں کو جو سٹیٹس ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ امریکی کروڈ آئل 88 اور برطانوی کروڈ آئل $91 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور جبکہ خام تیل کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کچھ اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں، یہ حوالے سے کلیئرٹی مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاید خام تیل کی قیمتوں میں بھی 3% سے زائد گراوٹ کے بعد معمولی اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، یعنی کہ جیسے ہی خبریں کچھ پازیٹیو آتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اس پہ فوراً سے رسپونڈ کرتی ہے اور جو قیمتوں میں گراوٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن جیسے ہی چیزیں تھوڑی سی ٹینسڈ اور ڈیڈ لاک کا شکار ہوتی ہے تو ظاہر ہے مارکیٹ تو اسی طرح چلتی ہے۔ امریکی کروڈ آئل 88 اور برطانوی کروڈ آئل $91 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آگے جو معاملات ہیں وہ کس جانب جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جی آئل پرائزز کی بات۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی بڑی گراوٹ آ گئی ہے ناظرین۔ سونا فی اونس قیمت $150 سستا ہو چکا ہے، جس کی قیمت $4185 ہو گئی ہے۔ چاندی کے ریٹس کیا ہیں کیتھرین؟ چاندی کی قیمت $3.86 کمی کے بعد $64.62 پر آ گئی ہے، اور سونا آپ کو عام زبان میں بتائے تو سونا جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے ابھی اپنے ناظرین کو بتائی ہے۔ ایک بار پھر سے اس کی قیمت جو ہے وہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑی گراوٹ آئی ہے، $4185 کی ہو گئی ہے، اور اسی طرح چاندی کی قیمت بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، اور چاندی کی قیمت $3.86 کمی کے بعد $64.62 پر آ گئی۔ ویسے تو ہائی اسکائی راکٹنگ پرائز ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں سونے کے، اور پھر ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جی وہ والا سونا سستا ہوا ہے، یہ والا سونا مہنگا ہے، لیکن اب اوریجنل سونا سستا ہوا ہے۔ اب سے اہم خبر دیں گے آپ کو۔ بھارت آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی مداخلت کا پردہ چاک کر دیا گیا۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ راز سے منسلک گروپ کے 5 امن دشمن پکڑے گئے ہیں۔ بالکل، اور جی لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات بھی ان سے برآمد ہوئے ہیں، اور دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی پکڑا گیا ہے۔ سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ ہماری انٹیلیجنس اس کا بھی جلد سراغ لگا لے گی، کیونکہ قومی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی سرگرمی کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگا اپنی سرزمین پر کسی بھی اس طرح کے انتشار پھیلانے کی کوشش کا بھی، تو اسے عملی جامہ پہنانے کی تو سوچے گا بھی نہیں۔ اب جی فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، پاکستان نے بارہا اس حوالے سے پہلے بھی اپنا موقف رکھا ہے۔ را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کارکنوں کو شرپسندی پر اکسانے اور انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کی ہدایت کی باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ خارجی شہزاد نے مختلف آڈیو ویڈیو پیغامات اور کالز میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ ویڈیو پیغام میں خارجی شہزاد لڑکھڑاتی آواز میں لکھا ہوا بیان پڑھتا دکھائی دے رہا ہے، پڑھتا سنائی دے رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین جو ویڈیو ہے، بہت کچھ اس حوالے سے چیزیں عیاں کر رہی ہے۔ ایک اور اہم ترین معاملہ، حکومت آزاد کشمیر نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام مقرر کر دیا ہے۔ بالکل، مطلوب افراد میں شوکت نواز، عمر نذیر، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان شامل ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت نے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر بھی
भी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जनाब। बिल्कुल ऐसा ही। इस हवाले से जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है और ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो विजुअल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो हुकूमत ने इस हवाले से, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब जो हैं, ये नाम उनके हवाले से इनाम का भी ऐलान किया है और मतलूब करार दिया। खबर दी आपको तेजाब गर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर के हवाले से। शुक्र है कि उनकी तबीयत संभलने लगी है। डॉक्टर महानूर की पहली सर्जरी भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है, जो 8 घंटे जारी रही। और ऑपरेशन के दौरान तेजाब से मुतासरा चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो जल्द के मुर्दा सेल्स है उन्हें हटाया गया है और जो स्किन क्राफ्टिंग है उसका अमल किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी मजीद कई सर्जरीज की जानी है। बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या हुआ जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर एक बार फिर समा के नाज़रीन को दोहरा देते हैं कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें कराची मुंतकिल किया ताकि जो भी इनकी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद है उन्हें वो फराहम की जाए। और अब शुक्र है अल्लाह का कि उनकी जो तबीयत है उस हवाले से जो हम तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि उनकी तबीयत अब संभल रही है और डॉक्टर महानूर की पहली सर्जरी भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। शुक्र है अल्लाह का, जो 8 घंटे जारी रही और ऑपरेशन के दौरान जो तेजाब से मुतासरा चेहरा और जिस्म, उसके मुख्तलिफ हिस्सों से जो जल्द के मुर्दा सेल्स होते हैं उन्हें हटाया गया है और जो स्किन क्राफ्टिंग का अमल है वो अंजाम दिया जाता है ताकि मरीज़ जो है वो जल्द अज जल्द रिकवर हो। हमारी ढेरों दुआएं हैं डॉक्टर महानूर की जल्द सेहत याबी के लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें जल्द रूबा सेहत करे। और ऐसे में ये ख़बर भी जो आ रही है वो भी अच्छी है, कुछ तसल्ली बख्श है कि उनकी तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है, एक कामयाब सर्जरी हुई है। तो याद दिला देते हैं आपको थोड़ा सा, बहुत ही दिल खराश, वैसे तो यूँ एक वाक़या के मतलब जिक्र करते हुए भी ना कैथरीन दिल को चीर देता है ये वाक़या, रूह काम जाती है कि ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सफाक लोग कैसे इस मुआशरे में बसते हैं जो इतनी नफ़रत अपने अंदर लेकर घूमते फिरते हैं दरिंदों की तरह। मैं तो इन्हें कहती हूँ दरिंदे घूमते हैं ये। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात उन पर ये एसिड अटैक हुआ था, फौरी तौर पर उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल किया गया था और अब जो उनकी तबीयत से मुतालिक खबर सामने आ रही है वो शुक्र है कुछ तसल्ली बख्श है। तो जनाब तैयारी पकड़ लें क्योंकि आपकी हमारी जेबों पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसकी अब बाकायदा तौर पर जो डेट है वो सामने आ गई है। वो ये है जी, माली साल 2026-27 का वफाकी बजट जो कि 12 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इस हवाले से बाकायदा तस्दीक कर दी है। पहले कुछ डेट्स के हवाले से मामला तय नहीं पा रहे थे, पहले ये बजट 10 जून को आना था, जिसके बाद अब तय किया गया है कि 12 जून को आएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने दोनों इजलास बुलाने की जो समरी है उसकी मंजूरी दे दी है और ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी आज दिन 11:30 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे और चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक होंगे। बहुत अहम इजलास ये होता है। बिल्कुल, बहुत ही अहम इजलास होता है और इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फंड्स की तकसीम पर गौर होगा। तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। तो बजट से रेलिवेंट कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से अमल में लाया जाएगा, ये सब आपको डिटेल के साथ हम समा की स्क्रीन पर बता रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं जनाब, कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है ये बात जो हमारी मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। हजारों अरब रुपए तो सिर्फ सूद के मद में ही देना पड़ रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। चलते हैं साथी एंकर उमैर बशीर की जानिब। ओवर टू यू उमैर, बताइए जरा हमें। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ। कर्ज तो कर्ज, सिर्फ सूद ही मुल्की मईशत के लिए भयानक ख्वाब बन गया है। हर आने वाला साल मईशत को पस्तियों में धकेल रहा है। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान अगले 5 साल कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सिर्फ सूद भरेगा। सूद की अदायगी का ये बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मसावी है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत आवाम की जेबें खाली करने के साथ नए कर्ज लेकर भारी सूद की अदायगी की जाएगी। माली साल 2026-27 में सूद की अदायगी का तखमीना 7,824 अरब रुपए लगाया गया है। 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 8,273 अरब और 2028-29 में 8,600
81 अरब तक पहुंच जाएगा। मार्च 2026 तक बैरूनी कर्जों और वाजिबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जिसकी कदर पाकिस्तानी रुपए में 97,000 अरब रुपए बनती है। अब देखिए ना, महंगाई ने तो पहले ही मार डाला है, नया आने वाला बजट न जाने क्या गोल खिलाएगा। सबके ज़हन में यही सवाल है। अब कराची की वर्किंग लेडी वर्दा मेमन का कहना है कि महीने में 50 से 60 हज़ार कमाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि नए बजट से वर्दा मेमन जो है उन्होंने कहा है कि बहुत सारी तवक्कात हैं। चलिए इनकी जुबानी ही सुन लें। बिल्कुल, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के इश्यूज़ यही होते हैं कि उनके पास एक लिमिटेड सैलरी होती है जो कि इंक्रीज़ नहीं होती, साल भर साल भी अब इंक्रीज़ नहीं की जाती। उसी बजट के अंदर हमें अपनी पूरा जो घर का निज़ाम चलाना होता है। हमें बोला जाता है कि बजट जो है वो इस बार आपकी फेवर में आएगा, मगर जब ये चीज़ें बोली जाती हैं और जब अनाउंस होती हैं तो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बजट जो है वो इससे ऑपोजिट ही आया हुआ होता है, जिससे हमारे रोज़ के मर्रा की चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इतने कमाते हैं कि जितना महीने के 50,000 60,000, आप सोचें उसमें एक आम बंदा कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है। हमेशा ही ऐसा बजट आता है जो कि हमारे ऊपर बम की तरह गिरता है। तो इस बार ये है कि अब बम ना गिराएं हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर। तो जनाब, बेअमनी का शिकार सूबा बलूचिस्तान की मुआशी हालत दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना, कारोबारी हफ्ते के अलावा भी अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अवाम भी वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बजट में बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसे ख़त्म करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मजीद बता रहे हैं नूरुल आरफीन। जी बताइए नूर। वफाकी हुकूमत के आइंदा माली साल के बजट के हवाले से कोयटा के शहरियों और ताजिरों को क्या तवक्कात हैं, आइए जानते हैं। हमारा सूबे में तो कुछ भी नहीं है, रास्ते बंद, सब कुछ बंद। इस हालात में हम कैसा टैक्स दें? हुकूमत ने ऑलरेडी जो है 25,000 रुपये मतलब 1% तमाम पाकिस्तान के ताजिरों पर लागू कर दिया। बलूचिस्तान को टैक्सों से मुस्तस्ना किया जाए। बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अमन दो और बलूचिस्तान की आवाम को और कौमी शायरों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, हमें एक प्री पैकेज की ज़रूरत है, हमें एक रिलीफ की ज़रूरत है। इस वक्त बॉर्डर्स की सूरत हाल है वो ये है, 1500 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है। काम 8 से 10 घंटे होता है, 24 घंटे काम होना चाहिए। और जो मेन अहम बात है, जब तक अमन नहीं होगा, रास्ता नहीं खुलेगा, कारोबार नहीं होगा। 100 गाड़ियां ट्राले जलाई जा चुकी हैं। जब 70 अरब का माल जलेगा तो कौन सा ताजिर जो है वो मूवमेंट करेगा? हमें बॉर्डर्स के इश्यूज पे अमल दरामद चाहिए। हमें बॉर्डर की हद तक, बलूचिस्तान की हद तक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको इतिमाद में लेके कोई पॉलिसी बनाया जाए। बलूचिस्तान बहुत अच्छा खूबसूरत सूबा है, इसमें बहुत सारे हमारे वसाइल हैं, लेकिन मसाइल उससे भी बढ़ के हैं। बच्चों को एजुकेट करें, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। टेक्निकल एजुकेशन है वो हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत मस्ट है। सबसे कम अफराद जो बाहर जाते हैं टेक्निकल फील्ड में, जैसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, तो वो उसमें बलूचिस्तान का बहुत कम हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को स्किल्ड किया जाए। कोयटा के शहरियों और ताजिरों का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट आवाम दोस्त, मतवाज़न और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फ्री होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान के ताजिरों के लिए बजट में खुसूसी पैकेजेस और मराद का ऐलान किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में खौफनाक गर्मी पड़ रही है। सिब्बी में कल भी पारा 49 डिग्री तक गया, जबकि कराची, लाहौर में बात कर लें तो हीट वेव ने जीना मुहाल कर रखा है। दर्जा हरारत कई शहरों में तारीखी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बात कर लें तो दर्जा हरारत कोई 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, जबकि 48 से 49 डिग्री की तपिश महसूस हो रही थी, जिसे हम कहते हैं कि फील हीट, कि वो सिर्फ इतनी महसूस हो रही थी। अब मौसम की ताज़ा तरीन इंसाइट्स भी मेरा ख्याल है कहते हैं हम हासिल बिल्कुल हमें हासिल करनी चाहिए। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ अंस जफ़र मौजूद है एज़ यूजुअल। अंस, बताइएगा, गर्मी तो बहुत शिद्दत से पड़ रही है, आप बताइएगा मज़ीद मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, ऐसे ही है, लाहौर में आज गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ और आज का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो आज ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त दिन के आगाज़ में ही टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से तजावज़ कर चुका है और महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी कि लाहौर में 10 जून का दिन सबसे ज़्यादा गर्म दिन होगा इस साल का, और ऐसा ही लग रहा है। दिन के औकात में मज़ीद इसके बारे में मालूम हो सकेगा टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया। आज जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। गुज़िश्ता रात को भी कुछ देर के लिए हवाएँ चली थी, उसके बावजूद भी मौसम वैसा का वैसा ही है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अभी मैं लाहौर के लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले PHA की गाड़ियाँ जो हैं वो पौधों को और दरख्तों को पानी लगा रही थी।
पानी का छिड़काव कर रही थी, तो मुझे भी बड़ी एक ठंडक सी राहत सी महसूस हो रही थी। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, जो माहिरीन हैं उन्होंने शहरियों से अपील की है, शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, वो मशरूबात का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कॉफ़ी और चाय की जगह मशरूबात को पिएं और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। और अगर वो गर्मी में बाहर निकलना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करें, सूती कपड़े पहन के जाएं। तो बारिश का किसी सूरत कोई इम्कान बताया जा रहा है अंश, क्योंकि ज़रा एक वही कहते हैं ना उम्मीद की किरण कुछ सामने आ सकती है? देखिए, गर्मी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन महकमा मौसमियात ने लाहौर के शहरियों के लिए आज खुशखबरी का भी एक इजहार किया। उनका कहना है कि आज रात से लाहौर में हवाएं चलने का इम्कान है और हो सकता है कि लाहौर में आज हल्की बारिश हो जाए रात के औकात में, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मामूली सी कमी आएगी और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंस, इतनी गर्मी में सुबह सुबह आप हमारे साथ मौजूद थे, और आप भी अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर भी आप ये ज़रूर अपनाएं। थैंक यू फॉर द इनसाइट्स। तो बिल्कुल मुल्क एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में। नाज़रीन, हमारे साथ इस मौजू पर बात करेंगे माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जिनके सामने हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो गर्मी की ये शिद्दत है, इसके जो असबाब है, और फौरी और दरमियानी मुद्दत में ज़रूरी हिकमत अमलियाँ क्या हो सकती हैं, क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ज़ैनब साहिबा, सबसे पहले तो आप बताएं कि दर्जा हरारत के गैर मामूली इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जो ग्लोबल मौसमियाती तब्दीली का जो असर है वो इस वक्त पूरी दुनिया में है। गर्मी की शिद्दत ना सिर्फ हमारे इलाकों में बढ़ रही है, बल्कि यूरोप में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है या लोगों की डेथ्स जो है वो होना शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर तजावुज़ कर गया है बहुत सारे ममालिक में। और वहाँ भी हीट डोम की सिचुएशन है, बिल्कुल उसी तरह साउथ एशिया के पूरे खित्ते में हीट डोम की सिचुएशन है, जिसका मतलब ये है कि एक प्रेशर सिस्टम बना हुआ है समंदरों के गर्म होने के बाद से, और ये टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। और क्योंकि आइंदा आने वाले कुछ महीनों में एल नीनो भी प्रेडिक्टेड है, और वो भी जब पहरुल काहिल गर्म होता है तो वो सिचुएशन होती है कि साली। और इस साल की जो वेदर फोरकास्टिंग है वो यही है कि बिलो नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल बारिशें एक्सपेक्टेड हैं पोटोहार और बाकी इलाकों में। सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित और केपी के कुछ इलाकों में अबव नॉर्मल बारिशें जो है वो प्रेडिक्शन हुई हुई है उनकी। तो लेकिन वो बारिशें मामूल से कम होने का मतलब ये है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा और साथ साथ कहत साली, पानी की किल्लत और फसलों को नुकसान। तो और जो लोकल कंडीशन है इसकी ये है कि एक तो गर्मी चलें ग्लोबली पड़ रही है, लोकली जिन शहरों में ग्रीन कवर कम है या नरम मिट्टी या बफर्स कम है, वहाँ पे गर्मी महसूस ज्यादा की जा रही है और इस वजह से लोग ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, अगर हम बात करें मौजूदा गर्मी की, तो मौसमियाती तब्दीली के तवील मुद्दती रुझान का हिस्सा समझा जा सकता है इसको? एक तो ये बताइएगा, या फिर ये आर्जी मौसमी साइकिल से जुड़ा हुआ एक वाकया है, हम इसमें कैसे अलग से पहचान कर सकते हैं? देखिए, ये तवील मुद्दती मामलात ही हैं। अभी इस साल की जो प्रेडिक्शन, जैसे मैंने बात की, एल नीनो प्रेडिक्टेड है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 6 से 8 माह तक रह सकता है। जिसका मतलब ये है कि आपको सर्दियों में भी उस तरह की सर्दी, बारिशें और बर्फबारी नहीं दिखेगी। पिछले साल भी इसी तरह का मामला था, लेकिन तब एल नीनो नहीं था। एल नीनो में टेम्परेचर जो है वो जरा ज्यादा तजावुज करता है, दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले साल की शुरुआत में अगर एल नीनो खत्म होता है तो उसके साथ लानीना शुरू हो सकता है। ये भी बहरुल काहिल का एक प्रोसेस होता है जो अपने साथ ज्यादा तेज बारिशें और टेम्परेचर कम करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इतनी गर्मी पड़ने के बाद लानीना आता है तो फिर सैलाबी सूरत हाल क्रिएट हो सकती है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद रहता है। और ये जब एक सुपर एल नीनो कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि बहरुल काहिल का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तजावुज कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि आइंदा आने वाले कुछ साल यानी 2026 से 2030 के दरमियान में इसके असरात की वजह से एक ऐसा साल आएगा जिसमें टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तजावुज कर जाएगा। आपको याद होगा 2015 में एल नीनो आया था कराची की पे, उसके बाद 2024 जो है वो वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आया।
तो उसी तरह का हम जो है वो पैटर्न देख सकते हैं। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज ऐसा फिनोमेना है जो चेंज होता रहता है और प्रेडिक्शन बदलती रहती है, इसलिए आप कोई भी चीज़ हतमी तौर पे नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी चीज़ हम हतमी तो नहीं कह सकते। और ज़ाहिर है ये एल नीनो है या उसके बाद वाला जो फेज़ है, ये सारे एक कुदरती मामला तो हैं जो ज़ाहिर है ह्यूमन इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो इसमें बुनियादी सवाल तो देखें डॉक्टर साहिबा, ये सारी चीज़ें समझना तो बड़ा ज़रूरी था, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल जो नाजरीन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अहम है, वो ये है कि क्या बुनियादी तौर पर इक़दामात उठा जा सकते हैं एक एज एन इंडिविजुअल के तौर पर। अब हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया के हवाले से भी बात कर लें अगर हम, तो फौरी तैयारी के लिए वो कौन से इक़दामात उठा सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, हुकूमती सतह पे एक मामला ये कि जो हमारी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन जो बनी हुई है वो साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज उस तरह से नहीं है कि एल नीनो ला नीना भी हम अब आके जिक्र कर रहे हैं, 2015 में इतना पता ही नहीं था। तो हमारा जो खित्ता है वो अवेयरनेस के मामले पे ज़रा पीछे है, इतना हमें इतनी साइंटिफिकली मालूमात नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइमेट, पानी, ये माहौलियात, ये डायनामिक सब्जेक्ट होते हैं और इनकी पॉलिसीज को वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहना चाहिए। हमारी बहुत सी पॉलिसीज ऐसी बनी हुई है जिसमें क्लाइमेट डायनामिक्स देखे नहीं गए। तो एक तो हुकूमती सतह पे इसकी जरूरत है। दूसरा ये कि जो हमारे बफर जोन्स हैं, एक होते हैं ग्रीन बफर्स, एक होते हैं ब्लू बफर्स। ब्लू बफर्स दरिया और ग्रीन जंगलात या नरम मिट्टी या सब्जा, उसको बढ़ाने की जरूरत है। शहरों में बदकिस्मती से हम इसको कम करते जा रहे हैं। मतलब इस पर पूरा फोकस करने की और बहुत अच्छे तरीके से इक़दामात और काम करने की ज़रूरत है। माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। समा को आपने वक्त, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खबर वही अंदाज में एक बार फिर खुशामदीद। क्विकली आपको बताते हैं, शुमाली आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट में चाकू हमले के बाद तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े और मुश्तल हुजूम ने कई इलाकों में गाड़ियाँ और बसें जला दी। कुछ विजुअल्स भी आपको साथ साथ दिखाते हैं और घरों पर भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि वो भी महफूज ना रहे, उन पर भी हमले किए गए। कशीदगी पीर की रात पेश आने वाले एक वाक़े के बाद शुरू हुई जिसमें एक सूडानी पनाह गुज़ीन पर मकामी शख्स को चाकू के वार से शदीद ज़ख्मी करने का पहले तो इल्ज़ाम आयद किया और वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई जिसने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना दिया। मुश्तल अफराद ने जो मशरिक़ी बेलफास्ट है उसमें मुसाफिर बस और दीगर कई गाड़ियों को नजर आतिश किया, जबकि मकामात पर खिड़कियों के शीशे तोड़े और बाज़ इमारतों को आग लगाई गई। ये आप विजुअल्स देख रहे हैं और बहुत इसमें देखा जा सकता है बड़ा क्लियरली कि किस तरीके से नजर आतिश किया गया और सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए तमाम बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पुलिस और सियासी रहनुमाओं की जानिब से अवाम से पुरअमन रहने की भी अपील की गई है। आपका शहर आपका समा में आपको बताएंगे कि कोटरी में 1 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामी गफलत के सबब गैर फाल हो चुका है। सनती फुजला नहरों में बहाया जाने लगा है। कराची, ठट्टा और कोटरी के लाखों शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। इजाज मुगल ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। आलूदा पानी का इस्तेमाल लाखों लोगों की सेहत दांव पर लग गई। कोटरी बैराज से निकलने वाली केबी फीडर नहर में सनती फुजला शामिल होने लगा। ये नहर केंजर झील में गिरती है जहां से कराची, ठट्टा और कोटरी समेत लाखों शहरियों को पीने का पानी फराहम किया जाता है। कोटरी में जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, वहाँ का जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही नाकिस है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरी इंडस्ट्रीज एरिया का ड्रेन वाटर ड्रेन करके इस केबी फिल्टर में पानी को छोड़ना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महीनों से बंद पड़ा हुआ है। कोटरी में सनती सीवरेज और केमिकल शुदा पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की तंसीब की गई थी, जिसे कोटरी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सुपुर्द किया गया। ट्रीटमेंट प्लांट पर माहाना 25 से 30 लाख रुपए का खर्च बचाने के लिए इसे ज्यादातर बंद रखा गया। मुसलसल बंदिश से ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनरी और टैंक नाकारा हो गए। ये अनट्रीटेड पानी केबी फीडर में डाला जा रहा है। बड़ी खतरनाक चीज़ है, आपको पता है कि यही पानी जो है लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी रिपोर्ट मैंने मुख्तार साहब से ले ली है और यही रिपोर्ट इंशाल्लाह डिटेल में मैं अपनी रिकमेंडेशंस के साथ जो है ना डीसी साहब को भेजता हूँ और ये कापी हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेज देंगे। आलूदा पानी के इस्तेमाल से लोग जल्दी इमराज, मैदे की बीमारियों और हेपेटाइटिस जैसे मोहलिक मरज में मुब्तला हो रहे हैं। केमिकल वाला पानी कराची नहर में छोड़ा जा रहा है, उससे काफ़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। ये जो है इस पे कंट्रोल किया जाए। सवाल ये है कि आवाम को साफ पानी कब मिलेगा और ट्रीटमेंट प्लांट को नाकारा करने के जिम्मेदारान को क्या सजा दी जाए। कैमरामैन इम्तियाज हुसैन के साथ एजाज मुगल, समा, कोटरी।
खबर वही अंदाज में हमें क्विकली आपको बता देते हैं। पोलो का शुमार दुनिया के मुश्किल तरीन खेलों में होता है जनाब। इस रिवायती और सनसनीखेज खेल में अब खवातीन भी भरपूर अंदाज में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। क्या बात है जनाब। उन्हीं बासलाहियत खिलाड़ियों में शामिल है कराची की ज़ैनब, जिन्होंने पोलो के मैदान में अपनी कुछ अलग पहचान बनाई है। शहरियार साजिद ने पोलो प्लेयर से खुसूसी बात की है। शहरियार वैसे हमें इनसे मिलवाते रहते हैं, तो आइए उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पोलो गेम एक मुश्किल गेम है, चैलेंजेस वाला गेम है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करके जो है वो गोल करना होता है। एक मेरे साथ इस वक्त बहादुर खातून मौजूद हैं, ज़ैनब, इनसे बात करते हैं, जो कि पोलो की बहुत अच्छी प्लेयर भी हैं और इस वक्त इन्होंने एक टूर्नामेंट भी खेला है जिसके अंदर इन्हें जो है वो अवार्ड भी मिला है। मेरे अबू खेलते हैं बहुत शुरू से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करनी, पहले राइडिंग की फिर पोलो शुरू कर दी। कितना मुश्किल लगता है ये गेम? मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज घोड़ों से बहुत डिफरेंस बनता है। अगर आपके पास अच्छे घोड़ों तो आप किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को भी ले सकते हो, तो उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। लेकिन आपने कंसिस्टेंटली खेलना होता है, वरना आप पीछे रह जाओगे। किसी भी स्पोर्ट में ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। ज़ैनब के इस आज़म को सलाम। इसी के साथ जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आप सोती मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।